It's been 24 hours since the formation of the Modi government. Today evening, 18 alliance partners met, in fact, 16 alliance partners met in Delhi and affirmed their allegiance to the NDA. In a proposal that was adopted unanimously, all NDA allies said that they are proud to have fought and won the 2024 elections unitedly under the leadership of Narendra Modi, and that they choose him as their leader unanimously or by Sarvasammati. The proposal also spoke of how the country has progressed in every field in the last 10 years under the NDA government's people-friendly policies, but through the day today, it was like mind games were at play, and at the center of all the attention were the duo of Chandrababu Naidu and Nitish Kumar. Various leaders of the INDIA grouping needled and cajoled them with reminders and recriminations of how other parties have been treated and how they also will now be labelled communal. But the NDA allies, despite all of this, remained resolute and stood their ground. मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरा एनडीए एकजुट होकर इस सरकार को 5 साल तक मजबूती से चलाने का काम करेगा। जो पार्ट ऑफ द एनडीए सर, how can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में रह करके हमने चुनाव लड़ा है। हम अपनी उसी स्थिति पर कायम हैं और कायम रहेंगे। नीतीश जी आज आकर के एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे और वो पत्र भी सौंपेंगे जिसमें श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई जाए। Respect India alliance and all that. We respect them. There's no second thought about they fought well. We appreciate them. We respect them. But our commitment to NDA is unwavering. आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे लेंगे। अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया, उस निर्णय पे हम कायम हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। और मैं फिर अश्योर करता हूं कि एक बड़ा मैंडेट तीसरी बार, तो ये प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पे, उनके विजन पे एक विश्वास का मत। But it's not like there wasn't any smoke which made people wonder if there was a fire. For example, the pictures that emerged from Patna of Nitish Kumar and Tejaswi Yadav boarding a commercial flight this morning to Delhi. Both leaders were headed to different meetings, very, very different meetings, because they're part of 2 different alliances, but both sat in the same plane and one behind the other. In fact, minutes later, Tejaswi moved up to Nitish's side. One can only wonder what was said in that flight. But once he reached Delhi, Tejaswi reminded that any ruling alliance now has to fulfill the unfinished promises made to Bihar and then some. Others like Sanjay Rao chipped in with a dig at how Nitish and Chandrababu Naidu remain friends to all and strangers to none. गठबंधन की बात करें, नीतीश बाबू साथ में आ रहे हैं, तेजस्वी भैया के आगे पीछे बैठ रहे हैं। क्या फ्लाइट में कोई डिस्कशन? राजनीति में कोई किसी का इस प्रकार का दुश्मन नहीं होता है, और नीतीश जी और चंद्रा बाबू तो सबके मित्र हैं, थोड़े मोदी जी के मित्र हैं। मोदी जी तो अभी आए राजनीति में। अब बिहार जो है किंग मेकर बन करके उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई, बिल्कुल। हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे। आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में। The question, though, is with this alliance done and the swearing in likely on the 8th of June, is there still scope for trouble in the NDA's paradise? Will INDI actually manage to stir up some trouble, or is this only Mungeri Lal ke haseen sapne, as
Eknath Shinde put it in the morning today. Let's take this across to Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Anant Vijay, senior journalist, Anurag Bhadoria, national spokesperson of the Samajwadi Party, Kamruzaman Chaudhary, political analyst. But my first question is to Rajiv Ranjan, national secretary of the JDU. Rajiv Ranjan जी, सबसे पहले आपको वही तस्वीरें दिखाती हूँ. पहले तेजस्वी जी पीछे बैठे थे, फिर बगल में आकर के बैठ गए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अब देखिए, आपने खुद दिखाया है, ये कॉमर्शियल फ्लाइट है और को पैसेंजर अगर तेजस्वी यादव को अपनी जगह देकर बैठने का अवसर देता है तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को हैरानी होनी चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो उससे आपके इरादे तो नहीं बदल जाएंगे। ये एक प्रीपोल अलायंस है और ये अभूतपूर्व जनादेश इसलिए मैं मानता हूं कि देश ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया है देश की सेवा की और पहली गैर कांग्रेसी सरकार होगी जिसको ये अवसर मिला है। अब जो कयास और अटकलबाजियां हैं, आज एनडीए की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी और नायडू जी दोनों उसमें शामिल हुए। जो लिस्ट आप देख रही हैं, सारे वो अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उन सबकी उपस्थिति की पुष्टि उससे हो जाती है और इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसमें भी हम साथ होंगे और निसंदेह जो एक रोड मैप होगा, मिलकर देश के लिए जो काम करने का जो एक संकल्प है उसको पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक औपचारिकता थी, ये सिर्फ थोड़ा सा एक कॉमन कर्टसी। अनुराग भदौरिया, सो थ्रू द डे आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे थे कि बस ये तो अब खत्म हो जाएगा, नीतीश जी उधर से इधर आ जाएंगे, यहां तक संविधान की बात कर दी गई, पास्ट प्रॉब्लम्स वर रिमाइंडेड। नीतीश जी ने तो आज साइन कर दिया है रेजोल्यूशन जिसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा है, एकजुटता से लड़ा है और जीता है। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं, सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। सबने बोल दिया, नीतीश जी मैंने साइन कर दिया। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी, अगर हम चंद्रबाबू नायडू जी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जी अभी कुछ दिन पहले जब जेल गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी मदद नहीं की। नीतीश बाबू जी के बारे में क्या क्या ही भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, हमारे को पैनलिस्ट बैठे उनको ही पता है, ऐसा कोई शब्द नहीं जो उन्होंने ना बोला हो। लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो जब कमजोर होती है तब तो आपसे हाथ जोड़ती है और जब मजबूत होती है तो आपको दौड़ाती है। ये उनका कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का है। भाई भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये पूरे सत्ता में थी, सत्ता के अहम में थी, जिस तरह से अन्याय किया जनता के साथ। चाहे हम लोग मुद्दे जनता की बात करते थे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान पे बात करो, ये बात करते थे, मीट, मछली, मुर्गा, मंगलसूत्र, बाबरी ताला, मुजरा, पता नहीं किस किस पे बात कर रहे थे। तो जनता ने, आपने देखा जनता ने कैसा जवाब दिया, आपको बहुमत से पीछे, आपको बहुमत नहीं लाने दिया। तो आप बैसाखी पे आ गए और बैसाखी पे जब आ जाओगे तब तो जाहिर सी बात है आपके दूसरों पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां से आप अयोध्या में, जहां प्रभु राम के नाम पे आपने अलायंस को बैसाखी मत कीजिए। अभी आप लोगों ने यूपी में अलायंस किया, कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस हुआ है। प्रभु राम ने, आपने भी तो अलायंस किया उत्तर प्रदेश में और आपका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। मैं बोल रहा हूँ, आप करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो बैसाखी नहीं हो सकता ना। हुआ ना क्योंकि हम जनता के साथ हैं। सुन तो लीजिए, हम जनता के साथ हैं। इन्होंने राम के नाम पे राजनीति करनी चाहिए तो प्रभु राम ने इनको नकार दिया, अयोध्या से भी हटा दिया। सोचो आप, अयोध्या से हरा के खदेड़ दिया, बोले आप लोग को यहाँ पे रहने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप प्रभु राम मेरे नाम पे राजनीति करते हो। अनुराग जी, पर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा मेरा आज का मुद्दा सिर्फ इतना है, तो एनडीए की सरकार बन गई है, 8 तारीख को स्वेरिंग इन हो जाएगी और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप निश्चिंत हो गए हैं क्योंकि कल पिछले 24 घंटे से सबसे ज्यादा चिंता आपको लग रही थी कि ये सरकार तो गिर जाएगी, बनेगी ही नहीं। अब निश्चिंत है ना, आप पे प्रपोजल आ गया। देखो ये सरकार बैसाखी पे, सुन तो लीजिए, बैसाखी पे चलने वाली सरकार कितने दिन चलती है, क्या होता है, ये आप भी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जिन अलायंस के साथ ये सरकार बना रहे हैं उनका दिल हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ रहता है, ये भी आप जानते हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे नीतीश बाबू जी हो, इनका सम्मान अगर किसी ने किया है तो इंडिया गठबंधन ने किया है, और अपमानित अगर किसी ने किया है भाषाओं के माध्यम से तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये भी आप जानते हैं।
तो इस बात का भी उन्हें एहसास होगा। हाँ। और आज नहीं तो कल आप देखिएगा, जनता के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के मुद्दे के लिए ये लोग भी एक दिन आप हम लोग के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ तो आप कह रहे हैं कि अलायंस सरकार चलती नहीं है, वो बैसाखी वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चला सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेगी। अनुराग जी संभल गए, अभी तो अलायंस की सरकार को यू वर जस्ट कॉलिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, अ लेम डक गवर्नमेंट एंड सेड इट्स गोइंग टू बी नॉट स्टेबल। आप भी तो बैसाखी वाली सरकार ही बनाएंगे, आप सबकी तो मिली जुली बैसाखी वाली सरकार होगी, आपकी कौन सी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी? हमारी सरकार में सुन तो लीजिए, मेरी सरकार में सुन तो लिए बट मत, एक बार सुन लीजिए, मेरी सरकार में मुद्दे हैं, हाँ। राष्ट्र के मुद्दे हैं। उनकी सरकार में अग्निवीर योजना है जो 4 साल के युवाओं को नौकरी देते हैं, जिसके लिए उनको नकारा गया है। उनकी सरकार में महिलाओं पे अत्याचार करने वाली सरकार होती है। ओके, वन एट अ टाइम, लेट मी बी मोर स्पेसिफिक। संजू वर्मा, आई एम नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश। टुडे तेजस्वी यादव सेड वन वेरी क्लियर थिंग, नीतीश कुमार brought in the caste survey in Bihar. Now he is in your NDA. Will you do a nationwide caste census? These are going to be not issues you can brush away. Will you do a nationwide caste census? You know, Padmaja, let's be very clear. Today even I will not beat around the bush. I've never done that, especially on your shows. Let the swearing in of Prime Minister Narendra Modi happen at 8 p.m. As is scheduled on the 8th of June, and then after that caste census होगा या नहीं होगा, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, whether the issue of privatization of Visakhapatnam steel plant, which has been a thorny issue, whether that gets resolved or not, ये अगले 72 घंटों में, 96 घंटों में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। But I cannot allow the allegations of the समाजवादी पार्टी to go unanswered. ये कहते हैं बीजेपी बैसाखी वाली सरकार नहीं चला पाएगी। पहले तो जो गठबंधन की सरकार है उसको बैसाखी वाली सरकार कहकर आप अलायंस पार्टनर्स की तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 टू 2004 गठबंधन की सरकार बखूबी चलाई। थर्ड पॉइंट, आप जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो चढ़ा रहे हैं, बात सही है, बट आप एक बहुत अहम बात भूल जाते हैं कि इन द लास्ट 29 इयर्स, लगभग 29-30 सालों में 26 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहे हैं। मतलब 90-95% of the time that Nitish Kumar has spent in active politics, he has done that by being an ally of the BJP. और रही बात, और ये जो आप बार बार आके कहते हैं कि बीजेपी को खदेड़ दिया, मैं आपकी बात तब मानती कि आपने खदेड़ दिया यदि आप बीजेपी का लोकसभा 2014 में हमको जो 73 सीटें मिली थी 80 में से 91% हमारा स्ट्राइक रेट था उत्तर प्रदेश में, यदि हमारा वो स्ट्राइक रेट आप नकार देते तब मैं मानती कि आपने हमको खदेड़ा है। मैं मानती हूं उत्तर प्रदेश में हमारी परफॉर्मेंस में चूक रह गई, but even today at 240 seats we are more than 13 parties of the dot alliance put together। इसलिए इतना उछलना बंद करिए, सरकार मोदी जी की ही आ रही है तीसरी बार। Okay, Kamru Zaman Chaudhary, I want to play out for you what Chandrababu Naidu said in the morning today. He was asked again and again. First he was asked in the morning, then he was asked in the evening, and he, I think, has answered to all the people who are trying to see trouble where there is none, where he says, you want some kind of news, but there is nothing that I can give you. Listen in. The purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Because don't bother. No, hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report it. He said, I am going for NDA meeting. Nothing is changing. Kamru Zaman Chaudhary. In the evening also he said, I am part of NDA. If I wasn't, why would I have fought elections? Yeah, no, before coming to your question, replying to this, I just want to show to the nation, this is the sum total of the election this season.
Modi government, India cuts down Modi government. That's the beauty of democracy, you know. From a Modi Sarkar to NDA Sarkar, this was the result that has done, the changes that has happened is because of the results out here. Now coming to the coalition politics that India is used to, rather right from the I.K. Gujral times or H.D. Devegowda or Chandrasekhar ji's time or even Vajpayee ji's time, it's already there in a parliamentary democracy and a multi-party democracy. My personal feeling is that if the NDA has got a mandate to rule the country for the next 5 years, let them rule it. Even I am sure absolutely none of the India partners will want to form the government at this time. The mandate that we got was to keep the Modi Sarkar in checks and balances. The checks and balances need to be there so that another Speaker of the Lok Sabha does not come to the parliament and chucks out 150 opposition MPs to pass some controversial bills. The bulldozing of the entire system, weaponization of the investigating agencies should not be happening under this government. That's the checks and balances that the Indian voters have given to the government this time, whoever is coming in. And it will be a harakiri of sorts if the Congress even attempts to form the government with the help of other coalition partners in the system. Okay, so you're saying that NDA is going to continue. There is not going to be any effort at horse trading or getting people on your side. That is not a possibility right now. That is not a possibility, but one possibility I am telling you is the elimination of, you see in Maharashtra what is happening. Fadnavis has already resigned as the deputy CM, taking moral responsibility. There are feelers coming from Shinde group to Uddhav Thackeray. There is not at all a single, reconciliation attempt to cobble back the coalition that is running the Maharashtra government right now. I have a hunch that within the next few weeks, Maharashtra government is going to fall and Mahavikas Aghadi is going to come back to power in Maharashtra. That is one number point. Okay. Second number point is here. You see in Bengal with the decimation of the BJP in Bengal, what I can sense out here is the actual philosophy with which BJP was running a very hard-nosed campaign at polarization, at vilifying a particular community to garner the vote. Let's just talk about the alliance right now, sir. What is at hand is the alliance. And let me also just point out that your leader of opposition and your senior most leader in West Bengal, Adhir Ranjan Chaudhary, also lost to somebody who's fighting election for the first time. He lost to Yusuf Pathan, who was an ex-cricketer and contested his very first election in life. So let's not talk about whose performance. We will dissect that in detail tomorrow. Anant Vijay, my question though is कि अब जो largely अगर नहीं भी टूटता है एनडीए, एक सेंस ये है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बोला था कि पहले यूपीए के जमाने में कोलिशन कंपल्शंस होते थे कि पैसा मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री हमेशा दी जाएगी कोई सम पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार. हमारे उसमें ऐसा नहीं होता. वी आर प्रोफेशनली रन. आज देखिए जो डिमांड्स आई हैं मिनिस्ट्रीज की, किसी को कॉमर्स चाहिए, किसी को हैवी इंडस्ट्री चाहिए. इट्स नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन व्हाई समबडी वांट्स हैवी इंडस्ट्रीज. अब ये होगा क्या इस एनडीए में? अब ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे, रस्सी जल गई. पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा. अगर आप देखें और याद करें कि जो गठबंधन सरकारों का दौर 96 से चला 2004 तक, उसमें सरकारों के बनने में कितना समय लगता था. आज 22 मिनट की मीटिंग में एनडीए ने अपना नेता भी चुन लिया और ऑन ए लाइटर नोट नीतीश बाबू ने 2 बार दस्तखत किए हैं उस पर. हिंदी में भी किया और अंग्रेजी में भी किया. तो नीतीश बाबू ने ठोक के समर्थन दिया है, इसको माना जा सकता है. और उस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग या कोई इस तरह की डिमांड आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब संभव है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो लोग नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि आप मेरे डॉट्स को जोड़कर देख सकते हैं. तो दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, अभी डिस्कशन में वैशाखी शब्द की चर्चा सुनाई दी. मैं बहुत सम्मान और बहुत आदर के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने सही समय पर पॉइंट आउट कर दिया और उन्होंने शब्द जोड़ लिए उसमें, लेकिन उनकी मंशा यही थी. मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी मेरे मित्र हैं, बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उनकी पार्टी ने. लेकिन उनकी पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कितने बार चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के और किन किन वैशाखियों के सहारे बने, ये उनको याद होगा.
जब वो रक्षा मंत्री केंद्र में बने थे तब भी वो क्या वैशाखी थे? इस तरह नहीं बोला जाता है किसी को वैशाखी, और इस तरह आप कह के एक दिव्यांगों का मजाक भी उड़ाते हैं। और जिस प्रकार से आप गठबंधन के राजनीतिक दलों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और जिस प्रकार से इस वक्त सूत्रों की फजीहत हो रही है, आप देखिए, कोई कह रहा है स्पीकर चाहिए, कोई कहता है गृह मंत्री को हटाने की बात हो गई। मतलब जिसको जो मर्जी होती है, लेकिन मजबूती के साथ ये गठबंधन चलेगा। और एक और आखिरी बात मैं पद्मजा जी कहना चाहता हूं कि 143 सांसदों के साथ मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री ने 5 साल तक सत्ता चलाई गठबंधन सरकार में बगैर किसी इसके, और न्यूक्लियर डील जैसा क्रांतिकारी कदम उठा लिया। तो आप तो नरेंद्र मोदी को जानती हैं और इनके पास 240 सीट हैं, तो ये बहुत मामूली सी बात है इसको मैनेज करना। और जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आज आए और आते ही उन्होंने समर्थन दिया, 22 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। और बहुत संभव है कि आज कल में राष्ट्रपति के पास वो समर्थन की चिट्ठी पहुंचा भी दी जाए जी। तो ऐसे सिचुएशन को अगर देखते हुए हमें नहीं लगता कि इस गठबंधन को 5 साल चलने में कोई दिक्कत होने वाली है। देख लीजिए अनुराग जी जो मेंशन कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली ट्रू। नीतीश कुमार ने नंबर 5 पे पहले हिंदी में सिग्नेचर किया है और इंग्लिश में किया है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ही वांट्स टू रिइटरेट कि मैं डबली आपके पीछे हूं। सिंगल टाइम नहीं, 2 बार दस्तखत कर दिया इधर पे। देखिए आनंद विजय जी, मैं आपको सम्मान पूर्वक बोल दूं, ये एक मुहावरे की तरह इसका इस्तेमाल होता है, इसके किसी अपमान के लिए नहीं होता, इसलिए इस पर तो कम से कम राजनीति मत कीजिए। जब हम लोग बात करते हैं, बोलचाल की भाषा में बात कर रहे होते हैं, तो आप उसको सिंसनाइन मत कीजिए कि उनका अपमान है, इनका अपमान है। एक हम लोग जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको आप सहारे की जरूरत है, उस शब्द को आपने अगर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर दी, जैसे कि यूपीए की सरकार, कहां बीजेपी के चक्कर में पड़ गए। कांग्रेस ने पिछले आखिरी बार कब पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी? कांग्रेस ने आखिरी बार कब पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो अहम था वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। जनता ने तोड़ दिया। जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय किया, लगातार अग्निवीर योजना 4 साल की नौकरी देंगे। बताइए, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य खुद तो 5 साल के 6 साल के लिए बनेगा, और अग्निवीर योजना मात्र 4 साल की नौकरी देना चाहेंगे युवाओं के लिए। तो युवा आपको वोट क्यों देगा? पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म की थी और चलाई भी थी। अगर वो माइनॉरिटी सरकार चला सकते हैं, यहाँ पे तो उनके पास पूरा एनडीए है, उनके पास 290 से ज्यादा सीटें हैं इस अलायंस के पास। सुन लीजिए, अच्छी बात है ना, भाषा शैली बदल गई, कम से कम भाषा में परिवर्तन आ गया। कि अब आप कोalition की बात करने लगे, सहयोगी की बात करने लगे। पहले तो एनडीए की बात ही नहीं करते थे, सहयोगी की बात ही नहीं करते थे। अब सहारे की जरूरत है, तो आप देखिए एनडीए गठबंधन की मीटिंग भी हो गई। अब एनडीए कितनी बार मिला है चुनाव के पहले, जरा आप भी बता दीजिए। ओके, अब बताइए। सो संजू वर्मा essentially boils down to this, and you know this actually is in keeping with what even Jairam Ramesh has said. Jairam Ramesh today has reacted to the statement that was released by all the parties together, and he said that before the election Mr. Modi kept talking about Modi की गारंटी। यह प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। The PM स्पोक ऑफ मोदी की गारंटी, उसका भौकाल बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर वोट मांगा था, जिसे हमारे देश की जनता ने नकार दिया। अब अचानक उन्हें मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की है। ही ओनली स्पोक ऑफ मोदी की गारंटी, आई मी माई सेल्फ, नाउ ही इज ट्राइंग टू रिवाइव अ डेड एनडीए। Padmaja ji, I'm very happy you raised this issue, and now very quickly I will give a pointed rebuttal. First point, after 10 years of being in power, when the entire world and everybody's uncle was giving advice and nasihat to the BJP कि इस बार तो बीजेपी को 100-150 सीटें भी नहीं मिलेंगी, कहां ये 400 पार की बात कर रहे हैं। 10 साल कांग्रेस यूपीए 2004 से 2014 तक सत्ता में थी, उसकी टैली बन गई 2014 में सिर्फ 44 सीट्स। 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी स्टैंड अलोन इज स्टिल एट 240। पहला पॉइंट। जयराम रमेश जी को एक बात याद दिला दो पद्मजा जोशी के शो के थ्रू। 2004 when the Congress came to power with its alliance partners, Congress standalone had only 145 seats. 2009 when the Congress came to power with alliance partners,
कांग्रेस स्टैंड अलोन हैड ओनली 206 सीट्स। मतलब कांग्रेस 2004 में सत्ता में 150 से भी कम सीटें लाकर गठबंधन की सरकार चलाई ना 5 सालों तक। फिर 2009 में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, सिर्फ 206 सीटें मिली, फिर भी गठबंधन की सरकार चलाई ना। तो आप करें तो सब सही है। अब जब बीजेपी की बारी आई है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते गठबंधन की सरकार को कुशलता पूर्वक चलाने की सक्षमता दिखाने का एक मौका मिला है। आप लोगों के पेट में इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है? और सबसे अहम पॉइंट ये है, ओके, पिछली बार लास्ट टाइम व्हेन द कांग्रेस क्रॉस्ड 240 सीट्स वाज इन 1991। 33 साल पहले कांग्रेस को 240 सीटें मिली थी, तो किस बात की खुशी मना रहे हैं? ओके, कांग्रेस रिस्पॉन्ड, कमरुज़्ज़मान चौधरी रिस्पॉन्ड, देन आई वांट टू ब्रिंग इन राजीव रंजन। मिस्टर चौधरी। Padmaja, if you remember 2004 to 2009, we had left parties also in coalition with us. On the nuclear issue, the left front walked out of the government, but still then other parties supported the UPA on issue-based support. It was an issue-based support that the Congress government enjoyed during the UPA 1 and UPA 2. But unlike the NDA government, which hinges on the support of its partners on the basis of the ED, CBI and the income tax, the NDA government is going to fall within the next few months. Write it today, mark the date. Whatever the astrologers say, 8 बजे 8 तारीख को शपथ लीजिएगा. It's the same 8 PM of Notebandi. It's the same 8 PM of the demonetization and the lockdown. Whatever the superstition, this Narendra Modi government will not survive the coalition politics because of the arrogance of the BJP. अच्छा, आपका इशू बेस्ड सपोर्ट था। राजीव रंजन, क्या आपने ईडी सीबीआई के बूते पे सपोर्ट दिया है? कांग्रेस कह रही है कि उनका सपोर्ट इशू बेस्ड था, आपका डर का सपोर्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, कभी परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में बढ़ाने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। ये 2 बड़े कारण हैं किसी भी बड़े राजनीतिक समझौते के लिए। उन्होंने जो भी किया बिहार की जनता के हित में किया। पहली बात, ये हिपोक्रेसी कैसी है कि आप एक प्रीपोल अलायंस, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जादुई आंकड़े से 20 सीटें ज्यादा जिस अलायंस के पास है। दूसरी तरफ आप मीलों दूर हैं और आपकी पूरी कोशिश संविधान का हवाला देते रहे, लोकतंत्र का हवाला देते रहे, लेकिन आपको अलायंस से तोड़कर कुछ साथियों को लाकर भविष्य में सरकार बनाने की योजना पर आप काम करते हैं। तो देखिए, ऐसा चलता नहीं है। इन चीजों को देश समझ रहा है। ये एक मजबूत अलायंस है और निसंदेह मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा जा रहा है। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे राजीव रंजन जी, आपको सेक्युलरिज्म की वॉशिंग मशीन में धो दिया जाएगा। बिकॉज आज तो शिवसेना ने ये तक बोल दिया, शिवसेना यूबीपी ने, कि ये सारी पार्टियां कम्युनल फोर्सेस के साथ खड़ा नहीं होंगी, कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार कभी कम्युनल बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, 96 में एनडीए के बनने के समय जनता दल यूनाइटेड उसका एक फाउंडर मेंबर है, और इन 30 वर्षों में ये सच है कि 4 वर्ष आप गिनकर दे सकते हैं जब हम एनडीए के बाहर रहे हैं। तो ये काफी लंबा साथ है, और देश में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस, जिसका जिक्र आज नीतीश कुमार जी ने किया, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हम कह रहे हैं, इसको डेमोक्रेटाइज करना है। निसंदेह अलायंस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कास्ट सेंसस की मांग करेंगे आप? जो भी पार्टनर्स हैं, स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे। लगातार बिहार की पार्टियां आपसे पूछेंगी, उनकी कांग्रेस पूछेगी, आरजेडी पूछेगी। देखिए, वो तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो एक सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो हमारा विधानमंडल का प्रस्ताव है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने जब ये प्रस्ताव पारित किया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है। इसीलिए सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और हमारी ये कोशिश होगी
कि जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसमें बदलाव हो और बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले। ओके, बताइए अनुराग भदौरिया। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा 29 साल से नीतीश जी के साथ इनका कोalition है। अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर थोड़े दिन के लिए गए तो आपने अपशब्दों का उनके साथ सुशोभित कर दिया। मैंने 29 साल के रिश्तों में आपने, अगर आपका साथ नहीं रहा सत्ता में, तो आपने उनके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, ये हम नहीं कर सकते। ये मेरे संस्कृति संस्कार नहीं है। नीतीश जी मेरे साथ आज नहीं है, आदरणीय तब भी थे, आदरणीय आज भी, आदरणीय कल भी रहेंगे। और जब ये लोग उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तब भी हम लोगों ने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ना हम चंद्रबाबू नायडू जी के लिए कभी किया, तब भी आदरणीय थे, आज भी हैं। क्योंकि हम सत्ता के साथ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सत्ता के साथ मेरे साथ आए तो मेरे लिए आदरणीय होगा, अगर मेरे साथ सत्ता में नहीं है तो मेरे लिए आदरणीय नहीं होगा। ये बीजेपी को मुबारक, ऐसी संस्कृति संस्कार। नीतीश कुमार को पलटू चाचा नहीं बोला था, जो बीजेपी का पलटू चाचा नहीं बोला था। और रोहिणी आचार्य ने तो क्या नहीं बोला था नीतीश कुमार के बारे में, वो याद नहीं करे तो बेहतर है। जब नीतीश जी छोड़ के बीजेपी के पास गए, रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया उनके लिए आपको याद है ना? सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब आप सुनिए। ना ही करें तो अच्छा है, वरना बीजेपी के प्रवक्ता शर्मा जाएंगे। छोड़िए, ना ही कीजिए, हमसे मत बुलवाइए, हम बोल भी नहीं सकते। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों शर्माएंगे? लाइटर नोट पे रोहिणी आचार्य है, कैंडिडेट थी आरजेडी की, उन्होंने अपने पिता की उम्र के आदमी के बारे में जो बोला था, अभी आप शालीनता की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने याद दिलाया। I have no interest in repeating those words. Sanju Verma wants to quickly respond to you, then I want to bring in Anant Vijay, please. Thank you. You know, अनुराग भदौरिया की मैंने बात सुनी, वो आज ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि पूरा मर्यादा और डेकोरम के चलते वो भाषा की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते। पर इनको बता दूं, बीट आई के गुजराल, बीट देवेगौड़ा, बीट चंद्रशेखर, और फॉर दैट मैटर बी इट वीपी सिंह, वंस अपॉन अ टाइम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कांग्रेस इन टर्म्स ऑफ पुलिंग द रग फ्रॉम अंडर द फीट ऑफ erstwhile प्राइम मिनिस्टर्स इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। गुजराल की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। देवेगौड़ा की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। चंद्रशेखर की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने। वीपी सिंह की सरकार को भी अड़चनों के साथ गिराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? कांग्रेस का था। इसलिए गठबंधन पर कांग्रेस और उसके जो भी नुमाइंदे हैं वो यहां बैठकर बीजेपी को नसीहत ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि जनता की याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे आप तो अपने खुद के जो पीवी नरसिम्हा राव थे, you did not even allow him a decent last rites. His body was not allowed into the AICC headquarters. भीमराव अंबेडकर को 2 बार लोकसभा ना आने दिया गया। नेहरू के चलते उनको फिर राज्यसभा के द्वारा पार्लियामेंट में एंट्री करनी पड़ी। बाबू जगजीवन राम जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी लेगेसी। Okay, let's not go back to the past again. We are talking about the future. But Jairam Ramesh again, Anant Vijayji, final word I'm going to give to you. A lot of morality is being spoken of also. Morality of Nitish Kumar, morality of Chandrababu Naidu, and the morality of forming the government itself. Because in a reminder, Mr. Jairam Ramesh has said in late November 89, the Congress got 197 seats, was the single largest party. It could have staked its claim to form the government. But Mr. Rajiv Gandhi did what he believed to be decent and morally right. Who can say that the caretaker prime minister has even an iota of decency and morality, as the people of India have rejected him resoundingly? वो कह रहे हैं कि आपको तो सरकार बनानी ही नहीं चाहिए, with or without your allies. जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और आजकल उनकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। भौकाल जैसा देशज शब्द उपयोग कर रहे हैं, तो ये हिंदी वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है पद्मजा जी। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस मोरालिटी की बात करना खैर कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। मोरालिटी से जुड़ा एक इशू है और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि जब 143 सीट थी तो इशू बेस्ड सपोर्ट उनको मिला था। जब लेफ्ट के 60 लोग छोड़कर चले गए थे, लेफ्ट वालों ने अपने स्पीकर के साथ, सोमनाथ दादा के साथ क्या किया था उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बस आपको और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पहला मौका था, कैसा इशू बेस्ड सपोर्ट था वो, जब पार्लियामेंट में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, अगर उनको याद हो तो अब
इतना करने के बाद संयम की, मर्यादा की, मोरालिटी की, इन सब चीजों की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो बड़ी खोखली लगती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों पर बोलने का अधिकार बहुत पहले खो दिया। उसने इतना लंबा देश पे शासन किया, ना वो संविधान पर बोल सकते हैं, ना मतलब बोल सकते हैं भाई, बोल ही रहे, मैं रोक नहीं सकता, पर बोलने का जब वो बोलते हैं तो ये खोखला लगता है कि संविधान के साथ सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किसी ने अगर संविधान को बदलने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आ गई 17 अप्रैल 1976 को, उस पर डिस्कशन हो गया। उसमें यह चर्चा हो गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कुछ नहीं किया जा सकता। उस पर सबसे बड़ी बात उसमें ये आई कि चुनाव के याचिकाओं को रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकते। इस तरह के प्रस्ताव तो वहां आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी, आपको मैं अभी जो उनका केस हुआ था 3 तलाक वाले मुद्दे पर जो केस हुआ था, वो भी मैं बोलने की मैं नहीं याद दिलाना चाहता हूं। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसलिए मोरालिटी की बात जब कांग्रेस करती है ना, तो अचानक से सामने वो कहता ना, धूल आईने पे पड़ी थी और आप चेहरे को साफ कर रहे थे, तो वो सामने आ जाता है। ठीक है, I'm sorry, I'll have to thank everyone because we're going to cut across now. The meeting of INDIA grouping is over and Mallikarjun Kharge, Congress President, is speaking right now. Let's listen in. और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. And just I want to tell this. Thank you very much. All right, so that was Mallikarjun Kharge said that we are going to do everything in order to stop the Modi government in its tracks.